Thank you, Shanti. So, once again, a warm welcome to Shanti Sarovar, which is one of the biggest retreat centers of Brahma Kumaris. And today's session is part of the weekly series that we have at Shanti Sarovar called Sunday Evening Talk, which is to give you some positive boost before you start your new week. And today, the topic is like we have a double dose. One is a very esteemed award-winning physician who will give a talk on the eye for an eye. And the second would be Raksha Bandhan celebrations. So without further ado, I would like to invite on stage Dr. Manoj Matnani, who has come all the way from Pune. So please give him a warm welcome. He is a pediatric nephrologist and has been awarded gold medal for his work and research in the nutritional value of in the neonatal therapy, and has been awarded the National Award Dynamic Indian of the Millennium. So over to brother for the topic, the eye for the eye. Yes, good evening. Om Shanti. So how many of you are new to this place? I mean, coming here for the first time? Okay, we always have quite a few, 50% come for the first time, and the others keep coming. How many are the second timers here? Okay, so which means you all have come multiple times. Good to know. So do you all know what is the topic? Okay, and how do you want to spell which I is first and which I is second? So, okay, the E-Y-E. And for I means that I, not the E-Y-E second one. Okay, so I don't want to disappoint you. We have to really start on time, which we are still, I say, 5 minutes late because I'm used to more of the British time, having spent a lot of time in that country. But this is because I have to catch a flight. I have not come from Pune. I'm going back to Pune, my hometown. I'm coming from Nepal on Seva for 10 days. So I have to really leave by 6:55. So I don't want to really disappoint you, but I thought I'll tell you that first, so that you are ready for that. So what I want to, particularly the ones who have come new, just raise your hands again, the ones who are new here, okay. So I want you all, particularly the first timers, from here to not load yourself with a lot of theoretical stuff, which I'll be telling you, not too much of theory, but take an experience from here. And I don't want to boast about Brahma Kumaris, being a Brahma Kumar myself, but the people who have come here, when you enter this campus, what difference do you feel from the outside world? Obviously, we are also in this world here, but from the outside campuses, I mean. You feel positivity, good. What else? Peacefulness. That's the reason we say Om Shanti. And when we say Om means I, the soul. That's the Sanskrit meaning of it. And Shanti is I am a peaceful being. So let's look at the word. So as I was saying, that you experience from here. Don't think of too many talks. If you even put this talk, even my talk I think is there on YouTube, I don't remember. There are so many people giving so many talks. You will get so much of matter nowadays on YouTube, but you won't get the experience which you are getting here in person. And I would really recommend you all to, as and when you get time, keep coming for Sunday refreshing. They are really refreshing, I must say, evening talks. And come for a beautiful experience here. Take experience from here so that you can recreate that experience at home. Because again and again you can't come here, right? You have to just create that atmosphere back at home. So let's come to the topic. It's E-Y-E. Thank you. Other people are also coming. At least 3-4 rows are now occupied, which is good to go. That's fine. Even if there was one person here, I would want to start. Because I feel the people who have come on time, we should respect their time. Because what happens? We really want to wait for many people or the entire house to be full. But in that, there's a little bit of disappointment for those who come on time. Do you agree? Yes. आप लोगों ने क्या दोष किया है कि टाइम पे आए हो? I'm speaking in Hindi. I'm sure आंध्रा के लोग नहीं, आंध्रा नहीं, तेलंगाना. आप लोग हिंदी समझते हो थोड़ा थोड़ा, right? तो सभी समझते हैं. I know that. So let's go to E-Y-E. For people who have joined later, E-Y-E. I कहते हैं ना E-Y-E. So it is nothing about I. It's about it's about an acronym. Acronym, do you understand? It means a short form for something. So I would say, let me tell you that word and see how you feel. Every word has an energy. Eliminate your ego. That's the E-Y-E, right? Ego. Are you egoistic? Oh no, you've conveniently just said no. Check. Everyone has a little bit of ego.
some people say inflated egos, matlab a lot of ego. And the most important point of ego is I am a. That is not ego. That is opposite of ego. Oh yes, perfect, very good. And just keep adding a little bit masala to that, because Andhra and Telangana, a lot of masala is eaten. All Nandinis are here. So yeah. You're going towards that positions and titles, okay. And before all that, I am a body. That's the biggest ego. And if you want to go into ego is basically, I must say, energy on the go, ego. So when you're constantly in your consciousness of being that I am this body, I am this doctor, I am this, I am a mother, I am a male or a female, I am a doctor, then you just get connected to that. And then that boosts your ego or it degrades your ego. What happens? It boosts, not sometimes, it does boost. And that's the reason we are saying it's ego. So I think from here, as I'm again and again saying, just take an experience. So we'll convert this EYE. What was that EYE? Eliminate your ego. And go into another EYE. What is that? Simple enough. Experience your energy. Because don't sit with yourself and tell yourself, oh, I am not a body, I am not a body. The moment you keep saying that, your brain doesn't understand negative things. It just understands positive things. And if you keep saying, I am not a body, I am not a body, the not thing is cancelled and the brain sort of records it as, I am a body, I am. You will get more connected to your body. For example, if you're feeling like if you want to get rid of anger, don't tell yourself, oh, I should not get angry, I should not get angry. What is the opposite of anger? Yeah, so tell yourself, I am a peaceful being. I am a calm or serene being. Then automatically anger will go off. So same thing. What is the opposite of I am a body? I am a soul. So don't keep telling yourself, I am a soul, I am a soul. It's not some mantra jap which you have to do. But as I said, experience your energy. That's the EYE which you all have to take from here. And it's really, we say at Brahma Kumaris, drama. You know what is drama? Drama means people use this word very casually, drama karta hai bahut. No, we are not saying that drama. I like to call it divine drama plan. Because I really have Vasanta sister, she's sitting behind. I told her whether I should really take this talk. It is just 15-20 minutes, half an hour. I'll be leaving soon in next 10 minutes. As I see the clock there, it's matching with my watch. Because sometimes the clocks also don't match. 2 minutes koi aage piche hota hai. So I felt that, oh my God, why am I really unnecessary? Why do they want to advertise when I'll not be there hardly here? But then suddenly I realized that not much of jibber jabber chat should be there. It is more of your experience from today's talk. And then you're having a beautiful festival celebration of Raksha Bandhan. And I would say on this auspicious occasion, actually it's tomorrow according to the calendars, if you can take it from here that this is the biggest point of Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is thought to be a festival of tying Rakhis, which will be done here. But it is basically a reminder to tell you what? Anyone who regularly come here, a big spiritual significance talk will be given to you by the sisters soon. But Raksha Bandhan tells you that I am not only that soul, I am that pure soul. Because this knot which is tied, it's a knot of purity, we say, at Brahma Kumaris. So let's go further. So what will I do in my entire day to experience your energy and eliminate your ego? What should I do myself? It is something very simple. Don't expect magic to come from here and I'll tell you a lot of points. No, everyone knows everything. When you were young also at school, or even when you used to go to the temple, the pujari used to apply the tika where? Why here? Anyone? Soul. Who's that speaking that? Soul. Okay. I like to interact, so I need to know. So why is the tika applied here? Because the soul is what? What? Soul what? Complete the answer and then give it to me. Don't say soul. Don't throw words at me. Tell me what? Soul what? Yes, exactly. The soul resides there and medically now it is proven. So you don't have any doubt about that. And if you tell us, give us proof. Yeah, there's a lot of proof. If you draw a line from here, going back horizontally, and a line from the center of the head on the top, vertically down at the intersection, there is an important gland. Do you know what is that gland? Pituitary. So it's pituitary and hypothalamus. How many of you are science students here?
Oh, quite a few. IT engineers, hub of Hyderabad, Bangalore, Pune, all IT. How many IT engineers? अच्छी तरह खड़े करो. Let me see who are those IT ones, the loud ones everywhere. Making everywhere the economy booming and सब महंगा हो जाता है everywhere. But that's not your fault. You also are bearing the brunt of that everything being expensive. So IT people are sitting behind. If I can just know how many professionals are here, medical professionals, how many doctors? Oh, quite a few. Doctors. Wait, just keep it raised. How many more? Okay, yourself. Which specialities quickly? ENT. Pediatrics. Similar to me. Okay. Homeopath. What? Who else? Paramedics. Anyone? Paramedical means pharmacists. No, how many nurses here? No one. Okay. Who are the other ones? Other professionals? Banker. Good. One at one time. Construction. Teach. How many teachers? Only one. Academics. Industry. So engineering. So it's, and how many? We forgot IT. How many engineers? Total engineers. Like IT also is engineering. Okay. So engineers always win the race. Medicos always are less. You know that. Even on Sunday evenings they are not free. Well, so we always like to do this as a workshop style. So we'll be doing it more workshops in future. Do you want to do it in a workshop style rather than a lecture style? We say in Hindi, abhi tak thak nahi gaye sun ke, pak nahi gaye kaan sun ke. Now you sort of energize yourself. So experience your energy from here and go. So as I was telling you, there is medical proof for it. No one can deny that the pituitary and hypothalamus is there. And if you know that this is what we call the master gland of the body, hypothalamus and pituitary together. Because medically, the medicos know that there are many releasing hormones and many tropins and all that. And these two glands are very connected to each other. And they control the functions of so many vital organs in the body. So if this is working well, you will not fall ill. So at this physical gland which we are speaking, hypothalamus and pituitary, both are physical structures you can see. But you can't see the soul, can you? If you tell me, please show me the soul. Sorry, I can't show you the soul because it is not physical. It is a metaphysical. You know what is meta? Meta means close to physical. And it is in close connection there. The soul sits over there. And again, when I say sits, that is also a wrong word. It's not sitting that way. Is it standing? No, we can't apply these words there. It is just present there. And it is controlling the body through that. So you have to really experience that. And if you tell me, yes, let me experience soul consciousness, yes, of course, Brahma Kumaris is expert at that. Because we expertise in that only, the soul consciousness. And remember, the more and more you keep doing this, experiencing your energy, and not only that I am a soul energy, I am a pure soul energy. And that Raksha Bandhan today is trying to tell you that you are a pure being. The more and more you start getting situated in that consciousness, what happens? Automatically your ego, we said E-Y-E, eliminate your ego. Automatically that goes off. Then you don't need to tell yourself, oh, I should not be egoistic. And you all were catching me, you all told me I itself is a big ego. But I is not an ego. When I say I am a pure soul, is that ego? Now you come back to that. And that becomes opposite of ego. What is opposite of ego? People use that word in the outside world. Sorry, when I'm saying outside, inside doesn't mean we are something away from the outside world. But when I say outside world means outside the spiritual realm. Because not many people want to learn spirituality. Do you all want to learn spirituality? It's a wrong question I'm asking. Sorry, I take it back. Because the very fact that you all are sitting here, you all are attending this, eye for eye, which means you all are interested. So what is the opposite of ego? Which value is that? Humility is a good value, but the direct opposite of ego is self-esteem. So when I say I, people say I is the sort of seed of ego, but we say I is the seed of soul consciousness as well, not ego consciousness. And at Brahma Kumaris, if you all want to go in future in the depth of spirituality, we are taught here a lot of swamans. In Hindi we say swaman. The exact translation in English is self-esteem. So points of self-esteem will be taught to you daily. And you have to keep practicing that. Just don't keep saying it, I am a
powerful soul, a pure soul. There are many we have, thousands of we call it self-respect as well. So these points of self-respect or self-esteem, the more and more you practice it, automatically your ego starts going off. Because many people say this also, that when we identify ourselves with the I, when we say I, you are egoistic. No, but when I say I am not egoistic, I am saying about the soul all the time, constantly. And let me quickly just give you an experience when I leave from here in the next 5 minutes. I'll just tell you the process of experiencing this energy. You all have come for that today. So what is the process? How do you want to experience? The only way to experience is? Yes, thanks, practice. But what do you have to practice but? Meditation. And what we say here is Raj Yoga meditation. And the word meditation comes from medicos. Medi comes there also. What is the meaning of medi? Anyone? Homeopathy should know it more than allopaths, because that is the beauty of homeopathy and Ayurveda, because you all know the concept of soul. Allopathy is all we don't even know, we are still searching, whereas we say Glasgow coma scale, consciousness, all that. They know, Hum Atma hai, I am a soul. That's the beauty of native Indian medicine. Yeah. What was my question I asked you? Sorry. Yeah. Closer to God. Okay. So we say, I'll give you another hint. We say doctor treats dash dash. Yes, fantastic. You're not a medico. You're not. See, Sharam aana chahiye. She sold a good one. What do you do? Like? Wow. So some PhD biochemistry is telling medicos. And so that is the word. Dash. What? Dash dash. Doctor treats dash dash. God heals. Perfect. But you all have to be your own doctor, let me tell you. No one else can heal you, and you can only heal yourself by your thoughts. So the more and more you situate yourself in this consciousness of I am the soul, eliminate your ego, that automatically goes down. That's the first EYE. And the second EYE is automatically you experience your energy. What should be first, eliminate or experience? Again, let's revise. Experience. Automatically that ego you won't even realize that suddenly body consciousness has gone, ego has gone. Because you become so silent and peaceful. So should we do that? Because we really have less time. And in the next few minutes, we'll just make some red light if they can. If not possible, some soft music in the background, and just go with the flow, what I'm trying to tell you, and try to experience that. Okay, so let's begin. Let's sit straight. The spine should be always erect. Take a few deep breaths in and out. And relax your body, relax. Deep breath in and out. Music thoda volume kam kijiye. And relax your body, relax. As your body starts relaxing, your mind also has started relaxing. Relax your mind, relax. Your mind may still be wandering here and there, thinking about things from the outside. But very patiently and gently tell your mind, my dear friend, let me for the next few minutes fully concentrate here. And you'll be amazed to see that your mind listens to you. So now in this relaxed and focused state of mind, create this beautiful thought on this auspicious day of Raksha Bandhan. I am a pure and peaceful being. I am the energy driving this body. And experience this energy of purity and peacefulness. And see how you're feeling now.
purity and peace is my original nature. And being situated in my original nature helps me experience that inner power. And let's now take the second step in meditation. Just as I am the soul energy, similarly Paramatma, the supreme soul energy, that entity is much more supreme than me. And visualize that as a point of light above your head. And from that energy, rays of peace and purity are entering your system. And you're feeling more and more peaceful and pure. Because God is the ocean of all virtues and powers. I am Shant Swarup. God is Shanti Ki Sagar. And the more and more I connect to that Supreme Being, I start experiencing my original inner nature. And ego eliminates automatically. As all of us in this room have become so peaceful and pure, this room is now vibrating with that consciousness of purity and peace. And remember, each one of us, literally each one of us, is responsible for creating peace in the world. Let's come back, and when you open your eyes, good morning. It's not because you were sleeping, because it's a new awakening. You're experiencing your inner energy. That's the EYE. And you'll never know how your ego has eliminated. So, Om Shanti. And sorry for being very brief, but I wanted to give you all an experience. Therefore, I thought we'll meditate more. And all the best for experience your energy in future more and more when you visit your place. And if you can't visit, what should you do? Absolutely, you have to be your own doctor, I have told you. Because we have taught you the method. The sisters here also will teach you beautiful methods. Take it with you. Take it from here and give us some donation. What donation? We don't want your money. What do we want? Each one of us is creating this peace. So donate the peacefulness here so that everyone who comes here feels more and more peaceful. And it will accumulate in your account. Which account? We'll discuss that in chapter 2 sometime later. Om Shanti, thank you. I'll really take your leave. Okay. Thank you so much, brother. It was a very brief yet beautiful session. I was wondering how would you shift from that very fast, brief session into meditation, but you beautifully executed and showed us how it takes a moment to shift our consciousness. And even though it was a short session, but Vasanta Didi considers this not just like a session or a talk, because like we saw, many of you are there regularly or every Sunday without fail. So Didi makes sure anybody senior who's visiting us, so they get a chance to interact with the family here. So thank you to Didi and thank you to brother. So now we are moving on to the next part, which is the Raksha Bandhan celebration. So here at Brahma Kumaris, we do celebrate all the festivals, and one of the key differentiator that we have in the celebrations here is, apart from the celebration, we also try to understand the spiritual significance, like why we are doing it. And every
part of the ritual, what significance, what meaning it holds, so that we can become that and imbibe it in our life. So, to give us some insights on the festival of Raksha Bandhan, we have with us a senior faculty of Brahma Kumaris, Sister Shakti. So, let us welcome her on stage. Academically, she is qualified as a pharmacist, but after her studies, she decided to dedicate her life to the godly services. And for the past 30 years, she has been a dedicated faculty with Brahma Kumaris. Welcome, Didi. She is currently in charge of the center at Shamshabad and also takes care of the administrative wing services in Hyderabad, which is part of we have 20 wings and one of them is administrative wings. So with Didi, we'll learn about Raksha Bandhan, and post the session, we'll also have the celebration of Tying the Rakhi. Over to you, Didi. Thank you. Few minutes we will sit in silence, 1 minute, then we will start the session. Okay? So today we are here to celebrate Raksha Bandhan. So why we celebrate this festival? Shravan Maas and Paurnami. Na, Paurnami means full moon. Okay. So moon, जो चंद्रमा होता है वो स्वयं प्रकाशक है? No, ना. So sun स्वयं प्रकाशक. Moon जो है स्वयं प्रकाशक नहीं. So to get protection, real Raksha, first we have to take the power from God like sun and our internal impurity. है ना, हमारे अंदर की जो भी अशुद्धता है वो क्लियर हो जाएगा. Then our mind, thoughts, behavior like a moonlight. ఒకవేళ మన పైన మన మనస్సులో परमात्मा सूर्य యొక్క किरणाल पड़ते हैं ना. जैसे अगर हम परमात्मा से सूर्य की तरह शक्ति लेते हैं तो वो शक्ति से हमारे अंदर की जो प्रीवियस मेमोरीज है, पास्ट नेगेटिव मेमोरीज है, एटीट्यूड्स है, बिहेवियर है, जो हमको दिन प्रतिदिन दुख देता है, वो सारा समाप्त होगा. जो रेगुलर डिस्कोर्स ब्रह्मा कुमारीज में समझाया जाता है, जब वो एक बार वो पूरा क्लियर हो जाता है तो हमारा जो बिहेवियर है, मूनलाइट में क्या होता है, कूल और हॉट. कूल, सनलाइट हॉट, है ना. तो सनलाइट मीन्स इफ वी गेट द लाइट फ्रॉम द गॉड, then we can clear all our negative tendencies, negative behavior, negative personality, नेगेटिव हैबिट्स जो हम रियलाइज भी करते हैं लेकिन उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं. उसके लिए चाहिए शक्ति ना, हार्ट. तो वो हमको परमात्मा से मिल जाता है और वो हम जो जिस रूप से हम अपना बिहेवियर को बनाना चाहते हैं वो बनाने के पहले हमारी प्रीवियस बिहेवियर को क्लियर होना जरूरी है. तो वो हो जाता है हम परमात्मा को याद करने से, जो हम हर सेशन में मेडिटेशन से सेशन स्टार्ट करते.
फिर तब हमारा जब वो सूर्य से शक्ति लिया तो फिर हमारा ब्रेन कैसा होगा, कूल, शीतल ना। तो ये जो रक्षाबंधन का पावन पर्व होता है पौर्णमी, फुल मून डे के दिन होता है। तो फुल मून जैसे वो आप देखेंगे ना तो कितना अच्छा दिखता है, एकदम राउंड ना। तो हम अपना इंटरनल, जैसे आप తెలుగులో ఒక సామెత చెప్తారు, నిండు కుండ తొనకదు ना। जैसे फुल हो जाता है वो डिस्टर्ब्ड कभी नहीं होते हैं। जैसे अधूरा होता है तो उछलता रहता है, आवाज करता रहता है, गिरता भी रहता है ना। अगर पानी भी गड्ढे में रहेंगे तो आधा है या 75% है, वो चलते रहो तो उछलता रहे। अगर फुल है तो हाँ, तो हम अपना जो इंटरनल मन बुद्धि जिसको कहते हैं, मन अगर एकदम भरपूर है तो व्यवहार में शीतलता आ जाती है, जैसे फुल मून। अगर जिनका दिमाग शीतल है तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा। जिनका कूल माइंड है वो इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा ना। कोई भी बात कभी बोलते ना कि ठंडे दिमाग से तो सोचो, क्योंकि सोच में अगर गर्म हो जाता है तो बिहेवियरल इम्बैलेंस हो जाता है। तो कभी भी अपना दिमाग को गर्म नहीं करना। तो ये रक्षाबंधन पौर्णमी के दिन मनाने का एक मूल कारण है, सदा संबंधों में अपने आप को इस मानव जन्म में प्रोटेक्ट करना है। तो कूल रहो। कूल रहना की मतलब, शीतल रहना का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम करो ही नहीं, है ना। जो शीतल होते हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ता है या कम होता है? एक तो एफिशिएंसी बढ़ता है और दूसरा परफेक्शन भी बढ़ता है। मतलब जो काम करते हैं काम ज्यादा भी हो जाता है और सही सलामत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीतल होने से क्रिएटिविटी बढ़ती है और वेस्ट भी कम रहता है। आप गड़बड़ में कोई भी चीज बनाओ, अगर खाना भी बना रहे, वो तेल गिराएंगे, सब्जी भी साफ करेंगे तो आधा वेस्ट करेंगे, आधा बनाएंगे। मतलब कोई भी चीज आप करते उसमें वेस्ट ज्यादा होता है। जब शीतल दिमाग से करते हैं तो हर चीज परफेक्ट भी बढ़ता है और ज्यादा भी हो जाता है। तो पहला ये जो रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते हैं, फुल मून डे के दिन मनाते हैं, ये हमें प्रतीक है कि हम अपना दिमाग को सदा शीतल रखो। तो शीतल दिमाग से करेंगे ना आज से। फिर हम राखी के दिन क्या करते हैं? जनरली आम, ये जो रक्षाबंधन का जो बंधन माना बॉन्डेज है ना, सो बॉन्डेज। कोई भी बंधन किसी को भी अच्छा लगता है या डिस्कम्फर्ट लगता है? कंफर्ट फील होता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है? जोर से बोलिए। मतलब थोड़े लोग बोल रहे, बाकी का आंसर कंफर्ट है। नहीं, सोच के बताइए, ठंडे दिमाग से बताइए। अगर समझ लीजिए फोन आया रिसेंटली 2-3 दिन पहले कि ये इंसिडेंट हुआ कि एक भाई अपना कुत्ते को नहला रहे थे और वो शायद गर्म पानी के लिए प्लग स्विच में लगाया और ऑन किया, दूसरी तरफ फोन आया, कॉन्शियस नहीं था, वो जो हीटर का रॉड था वो अपने शोल्डर में रखा और शॉक से उनकी डेथ हो गई। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो हम अपना जब दिमाग को ठंडा करते हैं, फोन में जब बात करता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है। अगर फोन में बात करते हुए भी अल्टरनेट दूसरा काम अगर करना भी है कर सकते हैं, लेकिन कूल दिमाग से। लेकिन जब भी बात करते हैं फोन में वो कॉन्शियस क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। बहुत कम लोग होते। जब हम पढ़ाई करते थे, जो हमारा प्रिंसिपल थे ना, शतावधानी बोलते, मतलब 100 वर्क्स सेम टाइम। शतावधानी, अष्टावधानी, पहले उनका अवार्ड्स में हमारा जो प्रिंसिपल सर थे वो शतावधानी थे। मतलब 100 काम करते। 100 काम कैसे कर सकते? जब दिमाग शीतल हो, प्रेजेंस ऑफ
माइंड हो। तो ये जो हम कार्य करते हैं, आपको क्या प्रश्न पूछा गया जी? जोर से। तो ये बॉन्डेज अच्छा है, रक्षाबंधन माना बॉन्डेज है ना। तो बंधन है मतलब अपना कंफर्ट रहेंगे बंधनों में या डिस्कंफर्ट है। जैसे हीटर जब खरीदते हैं तो उसका एक इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इंस्ट्रक्शंस माना बॉन्डेज। आप उस चीज को उसी प्रकार से यूज करो। जैसे मोबाइल आपने खरीदा तो उसका इंस्ट्रक्शंस होता है, आप जब इस मोबाइल को यूज करेंगे तो अभी आप गाड़ी चलाएंगे तो एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसी प्रकार से आप उसको गाड़ी को चलाओ। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो बॉन्डेज है। तो वो बॉन्डेज आप बताइए सुखदायी है या दुखदायी है? बोलिए। सुखदायी। वो दुख तब हो जाते हैं जब हम अपने आप को, अभी जैसे स्कूल, छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो उनको स्कूल भेजना है तो स्कूल उनको बंधन लगेगा। तो स्कूल बंधन है या सुखदायी है? स्कूल अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो वो सदा सुखी रहेंगे, अगर स्कूल जाएंगे तो वो सदा सुखी बनने में मदद करेगा। जाना है ना। तो ये जो रक्षाबंधन का बंधन है ये रियलिटी है, मतलब ये बंधन हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा वो ऑपरेट करने में कॉन्शियसली नहीं, अभी गाड़ी भी चला रहे, अगर वो मतलब अब ये क्या बंधन है, फोन बात करते हुए ये गाड़ी नहीं चलाना, मैं तो फोन बात करते हुए करूंगा, आपने कर लिया, अगर कॉन्शियसली एब्सेंट माइंड हो गया तो फिर क्या होगा? तो उससे दुख होगा या सुख? दुख है ना। तो ये रक्षाबंधन का जो बंधन है ये एक चीज हमें बताता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक बहुत सुंदर विधि में जीना, ये विधि ही बंधन है। तो वो कौन सी विधि है जिसका प्रतीक हम रक्षाबंधन में वो फॉर्मेलिटीज करते हैं। जब भाई अपने बहन के पास आता है, रक्षाबंधन में कौन सी संबंध का प्रतीक है? भाई और बहन का, है ना। तो मतलब जो इस वर्ल्ड में हम सब एक्टर्स है। आप पहली बार जो नहीं आए 2-3 सेशंस अटेंड करेंगे या अभी मेडिटेशन भी किए हैं तो उसमें हम अपनी स्वयं की पहचान, है ना, वी रियलाइज द सोल ना। व्हेन वी सिट इन मेडिटेशन वी रिमेम्बर पॉइंट ऑफ लाइट लिविंग इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, है ना। तो ये हम अभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास हमें मतलब आपस में जो संबंध है आत्मा का, जब शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लेते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट सबके साथ शुरू होता है और उसमें बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट होता है माता पिता से, और नेक्स्ट सिबलिंग्स, जो भी भाई बहन साथी होते हैं उनका ये कार्मिक अकाउंट्स का हमारा एक प्रकार का संबंध होता है। लेकिन ये संबंध बंधन तब होता है जिसमें नेगेटिविटी अगर एंटर होता है तो बंधन लगता है, लेकिन संबंध हमें हमेशा सुखदायी होता है। तो इसमें हमको, जैसे आपने महाभारत युद्ध में एक इंसिडेंट में बताते हैं, जहां दवा भी नहीं काम कर सकता है वहां, हाँ, तो वो दुआओं में इतना बल होता है। वो दुआएं भी किससे हमको प्राप्त करने हैं? जिससे हमारा जीवन का समीप संबंध है। तो ये रक्षाबंधन का प्रतीक है भाई बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति। जब वो रक्षाबंधन ना दुआएं दिल से, बहन अपने भाई के लिए और भाई अपने बहन के लिए दिल से एक शुभकामना, शुभ भावना जो होता है वो उनके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। इतना ब्लेसिंग रहता है, मतलब एक फर्स्ट पेरेंट्स का रिलेशन होता है, दूसरा ना सिबलिंग्स जो भी साथी है। तो ये फेस्टिवल जो है हम आपस में इतनी स्नेह से रहे, इतनी आत्मीयता से रहे, ये बताने वाला फेस्टिवल है रक्षाबंधन। और आजकल जो है वो सीक्रेट तो हम बाजू रख लेते हैं कि भैया अभी रक्षाबंधन में क्या दिलाओगे। हाँ, तो हमारा भाई कहता था जब छोटे थे ना,
ये जरूरी नहीं है तुम रक्षाबंधन के दिन ही तुम मुझे कुछ मांगोगे, जीवन भर तुम कभी भी कोई भी प्रकार का चाहना है ना तो तुम मुझे पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही मांगना है, समझे। तो भाई माना बहन के लिए सदा सदा उपस्थित रहे। लेकिन ये तो सही है, अगर भाई बड़ा होता है तो बहन के लिए वो दिलासा दे सकता है। अगर कई होंगे ऐसा होता है भाई बहुत छोटा होता है बहन बड़ी होती है, तो वो भाई बहन को कैसे आप मतलब रक्षा कर सकता है या उनकी आवश्यकता या जो भी है पूर्ण कर सकता है। तो यथार्थ रूप में एक आत्मीयता की ब्लेसिंग, ऐसा नहीं है राखी बांधेंगे तो उस दिन कच्ची मिलेगा दूसरे दिन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ज्यादातर देखिए भाई अपना बहन के लिए खड़ा रहता है और बहन भी अपने भाई के लिए खड़े रहते। कई जगह पर मैं देख, जैसे मैंने बताया ना बहन बड़ी होती है भाई छोटा होता है, वो उनके पास रख करके पढ़ाते हैं, कॉलेज ज्वाइन कराते हैं, जैसे नेक्स्ट टू मदर जैसा केयरिंग कंसर्न होता है ना। तो ये तो भौतिक रूप से है। लेकिन ये जो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन पहले जो बहन है वो बैठती है और भाई बहन को तिलक देता है। जैसे ही तिलक दिया माना भाई का बहुत शुभ भावना वाला संपन्न, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है ना, मतलब शुभकामना जो है ना, भौतिक रूप में चलो ड्रेस दिया या चैन दिया या घड़ी दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आजकल दुनिया में इतनी चीजें जिसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, वो चीज नहीं दिया जाता है, पहले हाँ तिलक देते हैं। क्योंकि हमारी जो शुभकामना है उस किसके लिए, आत्मा के प्रति। शरीर तो कॉस्ट्यूम है, भले वो फीमेल की बॉडी हो या मेल की बॉडी हो, लेकिन रिश्ता तो किस चीज से है, आत्मिक रिश्ता है। जिसलिए कहते हैं ना आत्मीय लोग ना, సంబంధం అనేది ఆత్మీయంగా ఉంటుంది, శారీరకంగా కాదు। శరీరం అనేది కేవలం ఒక వస్త్రం లాంటిది మాత్రమే। तो वो जैसे ही तिलक देते हैं बहन की बहुत शुभ भावना भाई के लिए हो जाता है। और जब भाई भी करछी देने से पहले क्या करते, बहन को तिलक देते। तो आप भी एक लाइफ एनर्जी, हम भी एक लाइफ एनर्जी। ये रिश्ता आत्मीयता में जब होगा तो वो संबंध सदा सुखदायी होगा के रिश्ते। और एक देखिए भारत में हम लोग बचपन से ही बुक्स में भी जो करिकुलम के है ना पाठ्यांश होते हैं उसमें फर्स्ट पेज होता है प्लेज ना। प्लेज में क्या लिखा होता है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये क्या बात है, बचपन में तो हम बहुत बार रोज करते रहे लेकिन कभी उसको समझे ही नहीं। चलो हम लोग तो नहीं समझे, इधर आने के बाद समझ में। आप लोगों को ये बात कभी समझ में आया किस रूप में हम सब भाई बहन हो सकते हैं? कभी सोचा इस बात को? जी जी। और अभी जैसे कोई भी स्पीसीज होता है ना, उसका मूल एक होता है, वो मूल से ही वो उसका वंशावली बढ़ता रहता है। जैसे कोरोना ही समझ लो, बैड हो या गुड हो, जो भी होता है वो शुरू एक से होता है, तो वो एक उसका मल्टीप्लाई होते होते बढ़ता है। आज विश्व में 700 करोड़ पॉपुलेशन है, 700 करोड़ से भी अधिक। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में 2 तो आर्कटिक अंटार्कटिक है, बाकी 5 कॉन्टिनेंट्स में सैकड़ों देश है। सैकड़ों देश में कितने सारे 700 मेल एंड फीमेल सारे मिलकर के, ठीक है। तो जैसे आपने कहा परमात्मा के बच्चे हैं, उस नाते हम एक परिवार के हैं, ये सत्य है। एक परिवार के ही ये सत्य है, लेकिन भाई बहन नहीं होता है। भाई बहन का जो संबंध है, ये जैसे कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं, जैसे अगर आप शॉप में जाते हैं, कॉटन है, पॉलिस्टर है, मेजॉरिटी ये 2 प्रकार का होता है। कंपनीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक प्योर कॉटन होता है, एक सिंथेटिक होता है। 2 ही प्रकार होता है, उसमें क्वालिटी फिर बहुत नंबरवार, लेकिन मेजॉरिटी तो एक कॉटन, दूसरा सिंथेटिक। ऐसे शरीर के कॉस्ट्यूम में एक मेल एक फीमेल। तो ये मेल फीमेल कॉस्ट्यूम को पहनने वाला कौन है, सोल। तो एज ए सोल ऑल वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, देन ओनली ब्रदरहुड फॉर द सोल। सोल इज a power, energy. So there is no question of male and female for the soul. For the body,
मेल एंड फीमेल। तो ये मानव जो सृष्टि है, हम सब शरीर से चल रहे हैं ना, तो जरूर जेंडर का कॉन्शियस तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर हम भाई बहन कैसे, आत्मा के रूप में तो भाई भाई है, तो भाई बहन कैसे है? तो ये जो मानव सृष्टि का, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, हम सृष्टि के जैसे 33 करोड़ देवताओं की आराधना करते हैं ना, तो उसमें किसको सृष्टि का रचता हम मानते हैं? हाँ, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सृष्टि का आदि पिता, प्रजा पिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा सरस्वती सृष्टि को हर कोई बोलते कि हम ब्रह्मा की सृष्टि के रचना है, वो क्रिएटर है और हम क्रिएशन। तो ये मानव सृष्टि का ह्यूमन जेनोलॉजिकल ट्री का जो सीड है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। मतलब ये बढ़ते ये वृक्ष इतना विस्तार हो गया है, लेकिन ये जो सीड है वो एक है, हम सब उनकी ही संतान है। तो हम उस समय क्या हो जाते हैं? ब्रह्मा के संतान, भाई और बहन। तो जिसको ही एडम, ईव, आदम, बीबी, जो भी रिलीजियस के है, हर रिलीजन में ये बताया गया है कि ये मानव सृष्टि का शुरुआत एक से हुआ है, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। तो हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। जब सृष्टि की आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके संतान के नाते हम सब आपस में भाई और बहन बनते हैं। ठीक है, तो वो रिश्ता जो है, अभी जैसे ही पौर्णमी है, रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, इसके बाद क्या फेस्टिवल आएगा? अभी देखिए वरलक्ष्मी का व्रत आप सबने किया होंगे डे बिफोर यस्टरडे। या दिवाली भी आती है तो क्या करते? पूरी घर की, अभी जैसे अपनी कंट्री में किसी को बुलाया ना, चलो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कभी आए थे ना, बिल क्लिंटन आए थे, सॉरी ये कौन, इवांका आए थे, बीच में और कोई आए थे ना विदेश के जब प्रेसिडेंट के, तो क्या करते? सारे शहर को एक तो साफ करते, सफाई के बाद फिर सजाते है ना, डेकोरेट करते। तो एक व्यक्ति सो एंड सो कंट्री का प्रेसिडेंट है या एक्सेट्रा, उनको ही आह्वान करते हैं तो सारे शहर को साफ करते। जब कृष्ण का आह्वान करते तो कितना शुद्धता होनी चाहिए दुनिया ना। देव महादेव कहते हैं ईश्वर को, और ईश्वर की संतान जो महादेव की सर्व गुणों को अपने में लाकर मानवता का भौतिक शरीर का एक अद्भुत है जन्म, तो वो है श्री कृष्ण का। तो ऐसा श्री कृष्ण, ये धरती अभी कैसा पोल्यूशन है देख रहे हैं ना। तो फिजिकल पोल्यूशन तो एक तरफ रखिए, लेकिन मेंटल पोल्यूशन कितना है। तो ये जो गोल्डन एरा आना है, उसका मूल फाउंडेशन पहले क्लीनिंग होना है। वो कौन सा क्लीनिंग? एटीट्यूड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। एटीट्यूड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। हम सब में एक एटीट्यूड बना है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये ब्रिटेन है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वहां का है, ये यहाँ का है, ये सब देश है। मतलब जमीन को रहने के हिसाब से, अगर समझ लीजिए ये एरिया का नाम गच्चीबोली नहीं रखा है, तो आप सब पहुंचेंगे कैसे ना? पहुंचना है कहीं तो उसका स्पेसिफिक नेम हो, रूट हो, तभी हम वहां पहुंच सकते। तो आपस में एक व्यवहार रखने के लिए ये सारा देश है, स्टेट्स है, स्ट्रीट्स है, लेन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक सिस्टम है। पर हम सब धरती एक है, तो हम सब मानव भी एक परिवार के, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अभी तो देखिए आपको डिजिग्नेशन होता है, अगर सो एंड सो कंपनी में करते तो आप जीएम है या डीजीएम है या एमडी है या चेयरमैन है, तभी आप अपना काम उस रूप में कर सकेंगे ना। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट दिया, कोई डिजिग्नेशन दिया, आपको करना क्या है वहां जाकर, है ना। तो अभी ये सिस्टम है सीएम, डीएम या एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्यवस्था के लिए। पहले जमाने में ये होता है क्या? कंपनीज होते थे क्या? नहीं। लेकिन आवश्यकता है तो सबको है, तो आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये कैस्ट का सिस्टम रखे कि ये जो कुमार होते वो घड़ा बनाएंगे, क्योंकि सबको घड़ा तो चाहिए ना पानी पीने के लिए। और ये जो कपड़े बनाने वाले हैं
वो उनका एक कम्युनिटी है, वो कपड़े बनाएंगे तो सारी जनता को कपड़ा मिल जाएगा। और एक कम्युनिटी होगा खेती करेंगे किसान, तो तभी वो अनाज, मतलब ये कपड़े देते थे, वो अनाज लेते थे। ये जो कुमार होता है वो गड़ा देता था, कपड़ा लेते थे। तो आवश्यकताएं समाज में हर पूर्ण करने के लिए एक कम्युनिटीज बनाया गया है कि ये इनका प्रोफेशन है, सोनार सोने का काम करेगा, हाँ, कुमार अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ये इसलिए किया कि हर एक की आवश्यकताएं पूर्ण हो। कैस्टिज्म ले आकर के लड़ झगड़ के मरने के लिए नहीं, कि ये गौड़ से, ये रेड्डी से, ये चौधरी से आपस में लड़ते रहो, उसके लिए नहीं। सब एक काम करेंगे तो कैसे आवश्यकताएं पूर्ण होगी। तो उस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कैस्ट का सिस्टम शुरू हुआ। नहीं तो कौन क्या काम करेगा, सबकी आवश्यकताएं कैसे पूर्ण हो, है ना। लेकिन आपस में ये कम दर्जे के है, ये ऊंच दर्जे के है, वो भेदभाव के लिए नहीं। तो ये यूनिवर्सल फैमिली, वसुधैव कुटुंबम, ये सिर्फ कैस्ट एक सिस्टम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही किया गया है, ना कि भेदभाव से हम आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहे, डिफरेंशिएशंस लावे, उस चीज के लिए नहीं, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स का ये रूल था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। आपस में दो राजाओं के बीच में अनबनी करना और एक को मदद करना, उनका राज्य छीन लेना। फिर कुछ समय के बाद ये राजा को दूसरे के साथ अनबनी कराओ, फिर इस राजा का राज्य छीन। ऐसे करते करते वो कहानी है ना, दो बिल्ली को आपस में लड़ाओ और मक्खन जो है वो, हाँ, वो रोटी का टुकड़ा वो लेके गया। उस प्रकार से ही हुआ ना। तो आपस में हम आपस में लड़ते रहेंगे, फायदा तीसरे व्यक्ति को मिलता है। घर में आपस में भी भाइयों को लड़ाते और पूरा मिल जाता है लायर को, ये भी लड़ेगा, ये भी लायर का फीस भरेगा, ये भी बीच में दो भाइयों को मिलता है 30% हिस्सा, कई बार तो 70% लायर के खाते में चला जाता है। आपस में ये दो लड़ते, तीसरा हिस्सा तीसरे को मिल जाता है। या तो टेंशन में आ जाते और मतलब हेल्थ खराब हो जाता है और बिल भरेंगे हॉस्पिटल में, तो ये दोनों का नुकसान हो और फायदा। इसलिए ये भाई बहन का संबंधों में आपस में देखो, हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन में एक सेशन कराने गए थे, तो बातों बातों में दीदी अगर अपने भारत देश में, मतलब हैदराबाद हो या जहां पर भी है, ये फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब थोड़ा सा हिस्सा के लिए, पानी के लिए लड़ते, इतनी सी जमीन के लिए एक दूसरे को मारते, कोई और नहीं, आपस में भाई भाई या भाई बहन, ये चीज की केसेस अगर हम कम होंगे ना, तो हम देश की रक्षा में सारे समर्पित हो सकते। लेकिन 50% तो ये पूरा सिविल केसेस इतने आते हैं जिनका हद नहीं, रोज कोई ना कोई आपस में घर में लड़ना, पुलिस स्टेशन पहुंचना। लेकिन रक्षाबंधन एक समय तो एक गांव एक परिवार की तरह रहते थे जो हम देखे, लेकिन उसके पहले तो सारा विश्व एक परिवार। वो परमात्मा हमें कल्पना देते हैं, लक्ष्य देते हैं कि ऐसी दुनिया आने वाला है, जिसको हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाते। लेकिन उसके पहले का जो फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, एटीट्यूड लेवल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना है, कि हम अपने मन में हर एक को कौन सी रूप से देखे, भाई बहन ये सब हमारे हैं, हम सब एक है। सोचते 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 वो वाइब्रेशन, प्रकंपन फैलते फैलते एक दिन जरूर हर कोई रियलाइज करेंगे। एक समय था मेडिटेशन माना, लोग सोचते थे किसी को समस्या होगा तो वही करते हैं, लेकिन ये नीड है, समस्या, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। अगर हम मेडिटेशन नहीं करें, हम अपने मन की इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए, फिर प्रॉब्लम आया उसके बाद करो ना। कभी भी सब अच्छा हैंड है तो ठीक है, टूट जाता है तो फिर वो उतना काम उसके बाद करना मुश्किल होता है ना। तो आज का ये जो विशेष पावन पर्व है, भाई बहन का रिश्ता, हम सब एक है, एक पिता के संतान है, हर एक के प्रति बहुत शुभ, इतनी प्योर एटीट्यूड एक दिन जरूर। आजकल क्या है, अगर कोई इंटरनली रियलाइज भी करना चाहते हैं, जैसे समाज के बीच में आते हैं, बुरे संग में आते हैं, वो अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। और आजकल जो है मनुष्य के पैसे के लिए इतना ज्यादा लालच है, वो कोई भी प्रकार का धंधा करने में
पीछे नहीं हटते, और वो धंधा आखिर उनको भी नुकसान ही करेगा। तो वो भी जो टेम्पररी हैप्पीनेस का इतने भूखे हैं, क्योंकि यथार्थ शांति से दूर हो गए, इसलिए ये ड्रग्स है, ये है। अभी यहाँ पर भी अपन ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से डी एडिक्शन कैंपेन निकालने वाले है ना। एक तो एडिक्शन मोबाइल का है ही है, उसके कारण इतने नुकसान तो दिखाई दे रहे, और कुछ सालों से ये एक ड्रग्स का एडिक्शन है जिसका प्रभाव शरीर पर इतना गहरा बुरा होता है, जो मनुष्य अपना सुध-बुध खो बैठता है, क्या कर रहा है उनके इंद्रिय अपने हाथ में नहीं रहता है ना। पढ़ाई की प्रेशर है, और इसके मतलब जो प्योर सोसाइटी को प्योर एक ब्यूटीफुल, एक हेल्दी वेल्दी हैप्पी समाज बनाने का जो मूल है स्कूल है, तो वहां से ये ड्रग शुरू हो रहा है। और जहां स्वास्थ्य मिलता है वहां पर डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, वहां पर ये हो रहा है। आप सब दिन सुनते, कहीं पर भी कुछ दुर्घटना होती है तो सारे लोगों को दुख होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे समाज को हम श्रेष्ठ समाज माना ये नहीं है ना, मिट्टी है समाज माना, ये मिट्टी की पुतले में हम कौन बैठे? राजा, आत्मा। तो हम अपने आत्मविश्वास हम जितना योगदान कर सकेंगे। जैसे कहावत है, जब जंगल को आग लगा तो एक चिड़िया ने अपनी चोंच से पानी भर भर के बुझाने के कार्य में लगा, तो दूसरिया पंछियां देख करके हंस पड़ते कि तुम्हारी चोंच से जो पानी है वो जंगल को बुझा सकता है क्या, आग को? तो चिड़िया का उत्तर देता है कि जब भगवान के पास ये बताया जाएगा, जब जंगल को आग लगा तो मैं कम से कम देखने वालों में तो नहीं हूं। किस कैटेगरी में आ जाएगा? बुझाने की कोशिश तो किया ना। रामायणम लोड़ता भक्ति अंटर। तो गिलहरी ने भी अपना जो शरीर के उसके अंदर होते ना, तो वो मिट्टी में अपना वो करते था, लितर लेता था, फिर जाकर के वो झटक दे देता जहां पर पुल बन रहा था रावण पर विजय प्राप्त करने की, लंका का। तो वो गिलहरी के पास कितना ताकत है, जिसमें जितना ताकत है उतना काम करने से वो भगवान का आशीर्वाद वो बताते हैं ना, उड़ता मीद इट्ला उंटది కదా, రాముడు నిమిరినట్టుగా చూపిస్తాడు। मतलब राम जी ने वो गिलहरी को प्यार किया, तब तपाया। तो ये जो है, हम जो भी कार्य करते हैं, ये नहीं कि हम एक करने से कुछ होगा क्या, नहीं, हम करने से कुछ तो नहीं बहुत कुछ होता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ होता है। ये थॉट एनर्जी, शिवानी बहन का आप सब सेशन सुने होंगे, द पावर ऑफ सिंगल थॉट। हमारे एक विचार में भी, मतलब परमात्मा, यहाँ जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है जिसको मुरली का सत्संग क्लास कहते हैं, हमारे विचार में उतनी ताकत होती है। घर में भी अगर कुछ भी अनबनी होता है तो वो बदलेगा तो होगा नहीं, अगर हम बदलेंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन में आप देखेंगे घर में कितनी परिवर्तन। देवरानी है, जेठानी है, सास है, या ऑफिस में कोलीग्स है, या बॉस है, जो भी संबंध है, सब संबंधों में हमारे शुभ विचार से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन वसुधैव कुटुंबम। तो हम इस संसार में नई दुनिया का आह्वान करने से पहले हम अपने एटीट्यूड लेवल में, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना मस्ट एंड शुड है। ऑल वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, यूनिवर्सल फैमिली, वसुधैव कुटुंबम, जिसका प्रतीक ही रक्षाबंधन का त्योहार है। और उसमें हम क्या करते, एक तो तिलक लगाया, तो आत्मिक रूप में हम ब्रह्मा सृष्टि का आदि पिता इस रूप में हो गया। और फिर क्या करते, राखी बांधते। पहले तो रेशम के धागा होता था, वो धागे की राखी। अभी राखी बांधना है वो कॉन्शियस लेवल में, जिसको हमने कहा ये एक ब्लेसिंग मिलता है कि भाई के प्रति बहन का एक स्नेह है, प्यार है, वो प्रकट करना है ना। तो वो छोटा सा धागा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं सोने के राखी बांधेंगे तो बहुत प्यार है, वो नहीं। भावनाओं में भाई के प्रति एकदम, अगर सोने की राखी लाएंगे, अगर वो खर्चे कम देंगे तो नाराज हो जाएंगे कि हमने तो इतना महंगा राखी, और उसके फल में मुझे, मतलब ये फिजिकल कॉन्शियस लेवल से हमको ये ऊंचा उठाने का ये त्योहार है। राखी किस चीज से बना है वो नहीं करता है, कितना प्यार से हम बांध रहे हैं। तो वो राखी में आपको जो आज बांधा जाएगा, उसमें शिव परमात्मा का रूप का ये वो रहेगा,
के सिंबल है, गॉड शिवा का सिंबल रहेगा कि रियल प्रोटेक्टर, सच्चा हम सबका रक्षक परमात्मा है। तो ये जो धागे होते हैं, एक है रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ और दूसरा धागा होता है रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। वो सच्चा रक्षक है। कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहता है। आत्मिक स्थिति में हम बहुत सारी चीजों को पार कर लग सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं रहता, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो वो चीज भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। यही महीने में जब ये फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, 2007 में हैदराबाद में 2 बहुत बड़े धमाके हुए थे ना। तो आप सब जानते होंगे, अगस्त 27 को ब्लास्ट हुआ था। तो उस समय मैं वहां चिकड़पल्ली ब्रांच में थी। वहां के करीब ब्रांच में एक मलयाली लेडी रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी। तो जिस दिन वो गोकुल चाट में हुआ, उसी दिन उसी घड़ी वो वहां पर पहुंची, मेडिटेशन करके, आश्रम में आके मेडिटेशन करके। नेक्स्ट डे फेस्टिवल था, तो उनको खोआ वगैरह परचेज करना था। वो चाट में गई और वो ये सोची कि यहाँ पर अभी रश है, मैं थोड़े मतलब दूसरी शॉपिंग करके मैं आऊंगी। जस्ट वो शॉप से बाहर निकली, ब्लास्ट हुआ। मतलब हम सबका कार्मिक अकाउंट्स हमारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में आ जाए। और कईयों का उस दिन आप सुने होंगे जो यहाँ के नहीं कहीं और जगह का, और वो पल वहां पहुंचा, जैसे उस घटना के लिए ही विक्टिम बनने के लिए वहां पहुंचे, और कहीं वहीं पर थे वो टाइम पे। हाँ, तो ये सारा होता है कार्मिक अकाउंट्स का। और ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है गॉड। जैसे कोई बहुत गहरा दाग होता है ना जमीन पर, या तो उसको निकालने का जो मटेरियल तो मिल जाता है, कहीं एसिड से क्लीन हो जाता है, टाइल से समझ लो, एसिड डालो तो क्लियर हो जाता है। तो फैक्ट्रीज में भी बहुत सारा वो जम जाता है, तो एसिड से उसको क्लीन करते, उसका अलग सोल्यूशन मिलता है जिससे क्लीन हो जाता है। तो इसको किससे क्लीन करे? कोई, क्योंकि सोल इज द इनविजिबल, इमॉर्टल। वो ना पानी भिगा सकता है, हवा उड़ा सकता है, आग जला सकता है, तो किससे शुद्ध हो? सोने को तो आग में डाले तो शुद्ध हो जाता है, तो ये कौन से आग में डाले? इसमें जो हमारा कार्मिक अकाउंट्स नोइंगली अननोइंगली हम जो कमिट करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल तो यहाँ पर है। वो कैसे शुद्ध होगा? जी, माइंड। मन में ही, अभी मन ऐसा है, अगर हमारे पास्ट की बात है तो और पाप जमा होता है। तो क्लियर कौन सी कॉन्शियस से क्लियर होगा? टूल तो माइंड ही है, टूल तो माइंड ही है, थॉट्स ही है, लेकिन सम थॉट्स विल चार्ज द सोल एंड सम थॉट्स विल डिस्चार्ज द सोल. So which thoughts will create the energy in soul? So what are the positive thoughts? What are the positive thoughts? जी जी बोलिए, अच्छा सा सही बोल रहे, जोर से बोलिए. मेडिटेशन इज द वे टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स. ये विधि है, लेकिन जोड़ना कहाँ है अपने मन को? वेयर वी हैव टू, हाँ, सो वेयर वी हैव टू कनेक्ट. हाँ, सो मेडिटेशन के 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप है, ये मस्ट एंड शुड है, भगवान के साथ जोड़ने से पहले फर्स्ट, जिसको भगवत गीता में मन मना भव कहा, फर्स्ट रियलाइज योर ओन सेल्फ एज ए सोल, देन यू रिमेंबर मी. अर्जुन, हे अर्जुन, पहले तुम अपने आप को जानो, फिर मुझे याद करो. सो कनेक्टिंग कॉन्शियस विद द रियल सेल्फ. रियल सेल्फ, एक्वायर्ड सेल्फ मीन्स नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य जाति पाति आदि आदि आदि. एक्वायर्ड सेल्फ है ना. अभी हमारे पास परसों राखी बंधवाने अपनी छोटी सी बच्ची, मैं समझती हूँ 9 महीने की होंगी, अभी फर्स्ट बर्थडे भी नहीं हुआ, तो उनको अपना नाम से भी पुकारेंगे तो वो मोड़ के देख नहीं रहे, क्योंकि वो पेरेंट्स नाम ढूंढने में अभी लगे हुए हैं. ठीक है, तो वो बच्ची का भी नाम नहीं है, तो आवाज जैसे करो तो देखते हैं. अभी एक नाम का पक्का नहीं, जब नाम देंगे तो फिर वो नाम से. तो बाई बर्थ हम कोई नाम से जन्म नहीं लिए ना. तो अभी तो अगर आप आधी भी नींद में भी होंगे ना, आधी रात को भी अगर आपके नाम से पुकारेंगे तो
हाँ, एक्वायर्ड सेल्फ है। अभी जैसे वो बेबी को अभी नाम नहीं है तो वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कोई भी नाम से आप बोलो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जब नाम उनको बुलाते 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 एक्सेप्टेड, ओ मेरा नाम ये है। एक्वायर्ड सेल्फ है ना, रियल सेल्फ नहीं है। सो रियल क्या है? हाँ, सो हम अपनी कॉन्शियस को, आपने कहा ना पॉजिटिव थॉट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव थॉट्स? कनेक्टिंग कॉन्शियस विथ रियल सेल्फ। व्हाट इज दैट सेल्फ? सोल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, embodiment of purity, embodiment of love. The nature of the soul is peace, purity, power, happiness, bliss. नेचर। చింత చచ్చిన పులుపు చావదంటే కదా, अभी पानी है, वो अपना धर्म कभी छोड़ता है क्या? आप कितना भी गर्म करो फिर जाके ठंडा ही होगा, बिकॉज द नेचर ऑफ वाटर इज कूल। द नेचर ऑफ सोल इज पीस, प्योरिटी, पावर, हैप्पीनेस, bliss. So connecting conscious with real self is the positivity. But how to connect conscious with the सुप्रीम? पहले हम अपने मन के विचारों को बाह्यता से अंदर से जोड़ना है, फिर दूसरा है हम अंदर भी भगवान से जुड़ना है। जब ये ईश्वर कहते तो हमारा नजर ऊपर जाती ना, भगवंतुడు అన్నప్పుడు పైకి చూస్తారా కిందికి చూస్తారా? పైకే చూస్తారు కదా। मतलब सबकॉन्शियसली वी नो दैट गॉड रिसाइड्स इन द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, शांति धाम, परम धाम। मेडिटेशन में क्यों लाल बत्ती जलाते हैं? कि परमात्मा से वो दिव्य सूदनिंग लाइट होता है जिसका गोल्डन रेडिश, घेरू कपड़े पहनते हैं कि अल्टीमेट दैट इज द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। हम सबको वहां पहुंचना है। सन्यासी घेरू कपड़े पहनते हैं ना, क्योंकि वो अल्टीमेट है, वहां पर परमात्मा रहते। तो हम अपनी मन को वहां पर पहुंचाएंगे, वो वहां रहते। पर इतना वंडरफुल है, आप दिल से जहां पर हो, जब भी हो, जिस भी समय आप दिल से पुकारो तो परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब परमात्मा को हम याद करते हैं, ये ऐसा है, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने आपके बेटे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया, तो आपके फादर का एक प्रॉपर्टी थी और उन्होंने उनके कुछ काम के लिए क्लियर किया और आपका हिस्सा आपको दे दिया। तो एजुकेशन लोन का आपको जो इतना लंबा समय तक करने का था, वो एक दिन में ही, एक घंटे में ही वो लोन आपको अपने पिता से प्रॉपर्टी मिला, वर्षा मिला, तो ये क्लियर हो गया। ये फिजिकल इनहेरिटेंस है। और भगवान को हम 15 अगस्त के दिन सभी नेशनल एंथम गाए, जन गण मन, हाँ भारत, हाँ एक समय ओनली वन कॉन्टिनेंट जिसको भरत खंड के रूप में वेदों में शास्त्रों में वर्णन है। भारत भाग्य विधाता मतलब ओनली इंडियंस नहीं, टोटल यूनिवर्स इज ओनली द वन कॉन्टिनेंट। उस समय एक ही खंड था, भरत खंड। तो भाग्य बनाने वाला ईश्वर है। जब वो भाग्य इनहेरिटेंस वर्षे के रूप में हमें मिलता है तो हमारा कार्मिक अकाउंट्स, हाँ तो वो कार्मिक अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल है, लेकिन ये रिलेशंस का जो है वो और ज्यादा डेप्थ रहता है ना। तो वो हम जितना परमात्मा की याद में आत्मा समझ के करते हैं, ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो जाता है। ये सत्य है। मतलब आत्मा को शुद्ध बनने का शक्ति एक परमात्मा को है, जिसके लिए हम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहते। पतित पावन प्योरीफायर, लिबरेटर, प्रोटेक्टर, गाइड है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन ये जो 2 धागे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड। So we have to connect our conscious with the source of energy supreme. First we have to connect our conscious with the self and then we have to connect our conscious with the supreme. ठीक है, ये हो सकेगा कि नहीं? तो तब उसमें जब युद्ध के पहले पांडव जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो वो कहता है कि मेरा ये जो बाहुबल है, मतलब स्किल है ना, भीष्म तो योद्धा, द बेस्ट ना, मेरा जो स्थूल बल है वो इनके साथ है, मैं इनके साथ रह करके लड़ूंगा, पर मेरी दिल की दुआएं, हाँ तो जहां दुआएं हैं वहां पर विजय है। तो आप अपने भाई बहनें, और देखिए भाई बहनों के बीच में भी अनबनिया बहुत सारा होता है। तो आज का दिन दिल से
आपके जो भी जितने भी भाई है या बहन है, कभी भी कुछ भी अनबनी हुआ हो तो आज इस शांति सरोवर के पवित्र प्रांगण में दिल से आप अपने भाई बहनों को माफ करो। और आपने कुछ ठेस पहुंचाया है, दुख किया है, दुख देते ही है जरूर, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूर वालों से छोड़े ही लड़ेंगे। लड़ना झगड़ना किससे होता है? साथियों से ही होता है, जो साथ रहते हैं, भाई बहन ना, जो भी है। तो दिल से माफी मांगो और माफ करो। तभी मेडिटेशन में हम जब बैठेंगे, आज दिल से जो भी पास्ट की बातें हैं, एकदम दिल से उनको क्षमा मांगो और क्षमा कर दो। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। कई लोग तो बोलते तुमने तो मुझे उस समय सपोर्ट नहीं किया, अब मैं क्यों करूं? वो सपोर्ट नहीं किया एक पल का होगा, और नहीं किया वो वेट आप लंबे समय से उसको उठाते जा रहे, अपनी सिर पर बोझा लेकर के चढ़ रहे हैं। जिसके ऊपर सिर के ऊपर बोझा होगा, चलेंगे कैसे? लाइट रहेंगे? नाच सकेंगे? तो इसलिए आज इस पवित्र त्योहार के दिन अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे। वो दिल से आप अपने भाई बहनों को माफ करना और माफी मांगना। फिर अभी से इतना अच्छा आत्मीय रिश्ता रखना है। कभी बातें आते हैं, बातों को कहा जाता है बादल है, बादल तो चले जाते, लेकिन हम बातों को पकड़ के रखेंगे तो नुकसान हमें ही होगा। तो जब ये सारा हम निकाल लेंगे तो हमारा जीवन मीठा बनेगा। मीठा माना मधुर, मधुर ना। तो हम मधुरता संपन्न, मुख को मीठा करते हैं ना, तो मीठे बोल सच्ची मिठाई है, मीठे बोल। तो हमारी बोल में इतनी मिठास हो जो अनबनी भी बन जाती है ना। अपनी बोल से ही तो सारा है। अगर कभी चिढ़ जाते हैं, कुछ बोल देते, आपने वो बोला, आपको वो कॉन्शियस भी नहीं रहेगा, लेकिन जो सुने वो अपने दिल में ले लेते। तो जो भी हुआ है, आज से हम अपने मुख मीठा करना मतलब सिर्फ स्वीट खाना ही नहीं। आपको आज मिलेगा स्वीट, पर ये जो संबंध में आप मीठा खिलाते भी है। आजकल तो ऐसा है कि मिठाई को जितना कम खाओ उतना अच्छा है। पर ये खाने खिलाने की ही चीज नहीं, अपने बात और व्यवहार को स्वीट बनाना। और आज आपको विशेष अपने व्यवहार को स्वीट बनाने में एक बहुत स्ट्रांग डीप रूटेड सपोर्ट का ब्लेसिंग रहेगा। वो ब्लेसिंग आपको अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में, जैसे होता है ना, हर एक के अंदर एक कुशलता होती है, स्किल होता है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। तो ये मेंटल स्किल समझ लो, एक मेंटल सपोर्ट को बढ़ाने वाले एक सुंदर ब्लेसिंग कार्ड आपको मिलेगा। हर एक को अलग अलग, आपको जो चाहिए शिव बाबा आपको वो वरदान दिएंगे। तो ब्लेसिंग कार्ड आपको मिलेगा। वो ब्लेसिंग कार्ड नेक्स्ट राखी तक डेली उसको पढ़ना ना। दिन की शुरुआत जब करते, वो पॉजिटिव थॉट को अपने मन में लेकर के करना, तो आपको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। ठीक है। तो अभी हम अपने समीप संबंधी भाई को और अपने बहन को दिल से क्या करेंगे आज? हाँ, ठीक है। तो अभी योग में बैठेंगे, शिव बाबा को याद करके, परमात्मा को याद करके उनको दिल से माफ करेंगे। ओम शांति। स्ट्रेट बैठिए, सीधा, सिट स्ट्रेटली एंड कंफर्टेबली। टेक ए डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, बी रिलैक्स। फील करो कि भ्रुकुटी के बीच में हम चमकता हुआ जब सितारा है, शांति की सितारा है। फील करो शांति के प्रकंपन भ्रुकुटी के बीच से निकल रहे हैं। शांति, प्रेम, आनंद। आज मैंने एक सत्य को पहचाना है। वो सत्य है कि वसुधैव कुटुंबम, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। इस संसार का हर सदस्य मेरे भाई और बहन है। जब हम उस भान में थे, ये सृष्टि कितनी सुंदर हरियाली,
हर व्यक्ति फुल मून की तरह चमकता हुआ शीतल व्यवहार करते थे। आज मैं पतित पावन परमात्मा शिव की सूर्य समान शक्ति को ले रही हूं। उस परमात्मा शिव की शक्ति से मैं आत्मा जिस किसी से भी, मेरे अपने भाई अपनी बहन दुख दिया हो, नाराज किया है, शिव बाबा मैं उनको दिल से माफी मांग रही हूं। अपने मन से उनको फील करो। उनके सामने आप सूक्ष्म में अपना कान पकड़कर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, होल हार्टेडली आई एम सॉरी। आपको उन्होंने कभी दुख दिया है, अभी तक अगर आपके मन में है, फॉरगिव, 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 माफ करो दिल से। उनकी कोई भी बात अब मेरे मन में, मेरे दिमाग में नहीं है। परमात्मा शिव की शक्ति हम दोनों पर पड़ रही है और हमारे मन की नाराजगी की कीड़े खत्म हो रहे हैं और मेरा दिमाग, मेरा दिल एकदम शीतल और प्रेम से भरपूर। मैं अपने भाई बहन के साथ एकदम स्नेह पवित्र परमात्मा शिव को बीच में रखते हुए आगे का जीवन उमंग उत्साह, खुशी खुशी से मधुरता संपन्न व्यवहार करते आगे बढ़ेंगे। मेरे दिल की दुआएं मेरे परिवार के लिए है और सारे विश्व के परिवार के लिए है। अब मैं इस शांति सरोवर के परमात्मा अनुभूति स्थान से परमात्मा शक्तियों को, परमात्मा गुणों को भरपूर कर शीतल शांति से व्यवहार करते आगे बढ़। ओम शांति। अभी अपने बीच में विष्णुप्रिया बहन है, बहुत सुंदर गायक है। आप तेलुगु में पाड़ता तीयगा, आप सब परिचित होंगे जो रेगुलर संडे क्लास में आते। तो बहुत सुंदर रक्षाबंधन की गीत गाएंगे और हम सब आज इस पवित्र संकल्प की राखी बांध लेंगे, ठीक है? So now we will start the Rakhi. So before we head into the Rakhi tying, so there is an announcement. On 25th August, Shanti Sarovar will be celebrating its 20th anniversary, and we would like to invite all of you for this celebration. Join us and
help us celebrate this in a grand manner. So it will be from 10 a.m. to 1 p.m. Lunch will be provided here to all the attendees. So on that Sunday, there will be no Sunday talk. So do join us for the celebratory program of the anniversary. And the chief guests are Chief Minister of both the states, Telangana and Andhra Pradesh. So it will be a grand celebration, and it has been a long journey for Shanti Sarovar. You will witness in terms of, we will showcase what all has been done here. So be there with us, 10 a.m. on 25th August. So now we will head into Rakhi time. So we will start from that side. Vasanta Didi will be applying tilak. And there will be two Rakhi tying done by, Rakhi tying will be done by two sisters. So you can get Rakhi from either Shakti Didi or Komal Didi. Post that, take blessing and prasad from Sakshi Didi. So from the first line, please come from that side. You can start. Please come one by one, starting from the first line on the hall. रक्षक और